In the last lecture, I have shown you how to edit, update, and delete data in the grid view. Okay, how to connect with the database that already you know. Okay, then how to retrieve the data in grid view control, how to edit, how to update, how to delete. Okay, please try that code. Okay, at your home, practice karo. Okay, now practice is important. Okay, so ADO.NET, that is a concept of ADO.NET. Okay, we can connect our database with our application using the ADO.NET. Okay, already we have covered all these things. Connected architecture, to connect architecture data set. For disconnected, we are using the data set. Okay, this is the architecture of ADO.NET. I have already explained. Okay, when we are doing the connection with the database, so we require all these classes. Okay, we have to create object of the all these classes: connection class, command class, data reader class, data adapter class, and data set class. If we are using the disconnected architecture, then we have to use these three class, so four class: connection, command, data set, and data class. Okay, what the use of all these classes I have already explained. Okay, and here it is given to you. You can read from this file. Okay, I will provide this file. Data reader. Okay, data reader is used to retrieve the data. Okay, okay, so these are the steps, basic steps, okay, how to connect to database using ADO.NET. Okay, in this file, using both the methods data and retrieve. Okay, so you can try yourself. Okay, using data set is also given to here, and using data reader is also given to you. Okay, so you can use. Okay, you must use this data file header files. You have to write. Okay, before writing this code, you must use system.data.sql client namespace to connect to the SQL database. If you will not write this namespace, then the classes जो है connection class, command class, okay, में जाके every time if you want to do connection every time तो आप वो भी कर सकते हो, but क्या हो जाएगा, you require more times, आपको ज्यादा टाइम लगेगा ये पर्टिकुलर हर एक पेजेस में ये सारा कोडिंग करने के लिए. ठीक है, तो एज यू विश, आपको जैसे करना है वैसे. ओके, ये स्टेप्स आर गिवन टू यू. ओके, कैसे करना है. ओके, तो यू कैन यूज डेटा अपडेशन का दिया विद स्क्रीनशॉट्स के साथ दिया, तो आप ये भी यूज कर सकते हो. ये मेथड यू कैन यूज. अदरवाइज जो कल मैंने दिखाया पब्लिक क्लास वाला मेथड, दैट यू कैन यूज. डिलीट, हाउ टू डिलीट. ओके, डिलीट के लिए भी ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, हाउ टू डिलीट द डेटा, तो डिलीट के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी है, तो आपको जो इजी लग रहा है यू कैन यूज. ओके, यस, deleted. Okay, yes, see, connecting ASP.NET controls to database. Okay, जो अभी तक हमने जो भी डेटा डिस्प्ले करवाया, एडिट करवाया, अपडेट करवाया, इन ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में करवाया. ओके, which control we have used? We have used grid view control. Okay, grid view control. Okay, but you can also retrieve the data. Okay, you can also bind the data with this control also. Checkbox list, radio button list, drop down list, list box. In this control also you can display the data from the database. Okay, ये सारे controls में we can add the items from the item properties. Okay, but if you want to display the data from the database, so you can also display from the database. Okay, we have seen how we can use ASP.NET commands such as SQL command and reader to fetch data from database. We also show how we can read each row of table displayed on the web page. There are methods available to link controls directly to the different field in the tables. At that moment, only the below controls can bound to ASP.NET applications. Okay, so checklist, radio button, drop down, list box का जो properties है, which properties now you will use the data source property. Data source properties में जाओ. Okay, see, यहाँ पे दिया हुआ है, steps are given to you. Okay, so you can follow these steps. Okay, choose the data source. This is a list box. When you click the list box, okay, तो हम लोग क्या करे थे, एडिंग द आइटम के लिए हम लोग एडिट आइटम्स प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड. ओके, बट अभी आप क्या करोगे, चूज द डेटा सोर्स. क्या चूज करोगे, चूज द डेटा सोर्स. यहाँ पे स्टेप जो है, क्लिक ऑन द लिस्ट बॉक्स, देन क्लिक ऑन द डेटा सोर्स. ठीक है, ये डेटा सोर्स पे क्लिक करो, देन चूज द डेटा सोर्स. ओके, चूज अ न्यू डेटा सोर्स. आपके सिस्टम में जो डेटा सोर्स, जो डेटाबेस आपने बनाया होगा वो डेटाबेस पे क्लिक करना है. ओके, जैसे आप क्लिक करोगे, ओके, एसक्यूएल डेटाबेस जो भी आप होगा उसका नेम आ जाएगा. क्लिक ऑन दी ओके बटन. ओके, यहाँ पे न्यू कनेक्शन आ जाएगा, कनेक्शन करो. देन आपका जो डेटा है यहाँ पे
जो भी प्रोसेस आ रहा है, चूज द सर्वर नेम, एंटर नेम, पासवर्ड वगैरह, अगर वो नहीं आया तो जस्ट आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड यस दिस इज अ मेन थिंग कि आपको क्या डिस्प्ले करवाना है। ओके, और स्टार पे क्लिक करोगे तो ऑल डेटा विल बी डिस्प्ले, तो पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करवाना है। ओके, या तो आईडी या तो नेम, देन यू कैन चूज, यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, दिस इज अ चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स है तो यू कैन चूज द मल्टीपल कॉलम्स। ओके, कंडीशंस देना है तो यू कैन आल्सो यूज द कंडीशन फ्रॉम हियर। ओके, देन फिनिश, टेस्ट क्वेरी करो एंड फिनिश करो। ओके, तो आपका जो डेटा है वो किसमें डिस्प्ले हो जाएगा, इन दी लिस्ट बॉक्स में। कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, इन दी लिस्ट बॉक्स में। ओके, प्लीज ट्राई दिस, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो एंड कहाँ पे जाओगे, चूज डेटा सोर्स में। ओके, यू विल यूज चूज डेटा सोर्स एंड देन जो स्टेप्स है वो स्टेप्स फॉलो करो। आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट डेटाबेस एंड देन जो भी कॉलम्स आपको सिलेक्ट करना है तो कॉलम्स नेम, अदरवाइज स्टार करोगे तो ऑल डेटा विल बी डिस्प्ले। ओके, तो इजीली हो जाएगा। ऐसे हर एक उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट बॉक्स, ये देखो दिस इज लिस्ट बॉक्स में ओनली उन्होंने आईडी डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे आइटम्स डिस्प्ले करवाया। ओके, तो यू कैन यूज, अगर आपको सिटीज या तो कुछ भी और डिस्प्ले करवाना है फ्रॉम टेबल में से, तो यू कैन यूज लाइक दिस। ओके, तो this in this way you can display the items, okay, in the controls। okay, जो हमने लिस्ट बॉक्स या तो ड्रॉप डाउन या तो चेक बॉक्स, इन ऑल कंट्रोल्स यू कैन डिस्प्ले दी आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस में से डिस्प्ले कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि ओनली आप लोग ग्रिड व्यू कंट्रोल्स है तो लिस्ट जो भी है रिपीटर्स है उसमें ही कर सकते हो। नो, यू कैन डिस्प्ले द डेटा इन दिस कंट्रोल आल्सो। तो जस्ट उसका डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज है, उसमें जाके यू कैन steps you have to follow and you can display the items, data items। okay, मतलब from the database में से। तो ये steps try करो। okay, I will provide these notes, easy है, कुछ है नहीं उसमें। okay, if you want to do these things through the coding, तो coding through भी कर सकते हो। okay, कोडिंग के लिए सेम जो हम लोगों ने किया, ग्रिड व्यू को बाइंड करवा रहे थे, वैसे आप लिस्ट बॉक्स को बाउंड करो पूरा कोडिंग लिख के। ओके, तो जैसे वैसे ही ग्रिड व्यू में जो हम लोगों ने किया था कोडिंग करके, तो आप ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करके डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज में जाके आप डेटा सोर्स डायरेक्टली डेटाबेस बाइंड करोगे तो भी चलेगा। बट मैंने आपको पहले वो शॉर्टकट नहीं दिखाया, बिकॉज अगर मैं शॉर्टकट दिखाती तो यू कैन नॉट राइट द कोड। ओके, थ्रू ऑलवेज जो भी काम करना है थ्रू कोडिंग करो। ओके, कोडिंग करोगे, कोडिंग थ्रू करोगे तो यू कैन ऐड मोर फंक्शनलिटीज इन दैट कोडिंग। अगर आप प्रॉपर्टीज थ्रू प्रॉपर्टीज के थ्रू करोगे तो आप पर्टिकुलर थिंग ही कर पाओगे। ओके, so that you can display the data। okay, now grid view you have to learn grid view in detail। okay, as a syllabus में आपको दिया हुआ है, तो हमने देखा what is grid view। okay, grid view is a control which can display the values of so data source in tabular format। okay, आप लोगों ने देखा कल, अभी तक जो भी हमने प्रैक्टिकल्स में डेटा डिस्प्ले करवाया। ओके, दैट ऑल डेटा डिस्प्लेड इन ग्रिड व्यू। तब ग्रिड व्यू कैसे दिख रहा था, कॉलम फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में। ओके, उसमें रो एंड कॉलम्स था। So grid view is a control which can display the value of data source in a tabular format, where each column represent a header field and each row represent a values। okay, ASP.NET grid view control enables you to display, short and edit the data। okay, ये हमने किया, मैंने इसका कोडिंग आपको प्रोवाइड किया है। okay, I have provide, और कल दिखाया था मैंने, ठीक है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दिया है मैंने, टुडे आई विल अपलोड। ठीक है, तो यू कैन सी फ्रॉम दैट using grid view in ASP.NET C#, you could display complete data, you could perform sorting and paging। okay, आप वो डेटा को sort भी कर सकते हो, paging also you can apply। what is paging, I will show you। grid view in ASP.NET not only display the entire data grid view control, but we can also insert, delete and update the data। ठीक है, सेम थिंग रिपीट किया हुआ है, हम लोग कर सकते हैं। grid view in ASP.NET enables you to easily connect to the database। so these are the properties of grid view control। okay, so some properties you have to remember for your MCQ exams के लिए। ठीक है, allow paging property, this has the two values, this property has two values, true or false। okay, it shows whether the control should support paging or not। what is the meaning of paging, मैंने paging मतलब क्या, for example in our database there are 50 records है। okay, if you want to display एक पेज पे आपको 10 records दिखाना है, तो you can set the properties, grid view का properties क्या सेट करोगे, allow paging true, and उसको आप numbers दोगे।
ठीक है, कि एक पेज में कितना डिस्प्ले करवाना है, 10, देन नेक्स्ट आएगा वहाँ पे ऑप्शंस, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, so that is called the पेजिंग, उसको क्या बोलते हैं, पेजिंग। ओके, अलाउ शॉर्टिंग। ओके, तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, ट्रू करोगे तो डेटा विल बी शॉर्टेड, फॉल्स करोगे तो नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट उसका जो रहता है वो फॉल्स होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो उसका वैल्यू है प्रॉपर्टीज का दैट विल बी फॉल्स। ओके, यू कैन सेट ट्रू, indicate whether the control should support page sorting, short expression, okay, obtain the current short expression that show the order of the row, आपको जो भी उसमें शॉर्ट करना है, डेटा को अरेंज करना है, यू कैन राइट द एक्सप्रेशन, ओके, इन दिस प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो भी है वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट डायरेक्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके, डेटा सोर्स, okay, this is a property data source, through that you can display the data into the grid view। okay, जो हमने कोडिंग किया, select star from table name grid view में, grid view 1 dot data source and grid view 1 dot data bind, उसकी जगह पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोडिंग, व्हाट यू विल डू, यू विल सेट द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, इसमें आप क्या करोगे, डेटाबेस सिलेक्ट करोगे, जो स्टेप्स मैंने भी ऊपर बताया लिस्ट बॉक्स के लिए सेम स्टेप्स है, फॉर ग्रिड व्यू के लिए यू हैव टू चूज डेटाबेस, टेबल सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम्स लेना है वो डिस्प्ले करना है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ऑटो जनरेशन एडिट बटन indicates whether a different column should be attached to edit the records, okay, and auto generation delete, ये अभी नहीं समझ में आएगा, when you will उसको यूज करोगे तो समझ में आएगा ग्रिड व्यू में क्या चेंज हो रहा है। ओके, to set this property then you can understand। okay, indicates whether a different column should be attached to edit the records, okay, auto generate edit button, अगर उस बाय डिफॉल्ट दैट इज फॉल्स है, अगर आप ट्रू करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आएगा एडिट करके, कल हम लोगों ने किया था दैट, मैंने ऐड किया था एडिट में जाके कमांड बटन, तब जाके एडिट, तब जाके डिलीट ऐड हुआ था ऑप्शन, अगर आप ये प्रॉपर्टी सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, सेम डिलीट बटन भी अगर आपको जनरेट करवाना है तो यू कैन सेट दिस प्रॉपर्टी। ओके, ऑटो जनरेट डिलीट बटन, प्लीज स्टूडेंट ट्राई ऑल दिस थिंग्स। ओके, जो प्रॉपर्टीज है उसको ट्राई करो ग्रिड व्यू के लिए। okay, then these are the style properties, ये सारी स्टाइल प्रॉपर्टीज है, अल्टरनेटिंग रो स्टाइल, एडिट रो स्टाइल, आपको कैसे उसका जो भी कॉलम्स रोज जो भी हेडर वगैरह सेट करा है, दिस आर दी स्टाइल प्रॉपर्टीज। ओके, तो स्टाइल प्रॉपर्टीज यू कैन ट्राई, फुटर हेडर क्या होना चाहिए, कैसे दिखना है, जैसे कैलेंडर के लिए वी हैव सेट दी प्रॉपर्टीज, फॉर स्टाइलिंग के लिए वैसे इसके लिए भी प्रॉपर्टीज है। अपीयरेंस प्रॉपर्टी, सेल पेडिंग कितना होना चाहिए, सेल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ओके, टेबल्स एंड कॉलम सेल और कंटेंट के बीच में, दैट थिंग्स यू कैन आल्सो सेट। ओके, ग्रिड लाइंस, ओके, जो आपका ग्रिड व्यू है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हम लोग टेबल रहे तो कैसे लाइनिंग बॉर्डर उसको देना है, तो यू कैन सेट, ओके, यूजिंग दिस ग्रिड लाइंस। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको शो करवाना है तो अब, ओके, इमेज अपीयरेंस प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ इतना है नहीं, जब जैसे यूज करोगे यू कैन गेट आइडिया। ओके, इवेंट्स, ओके, एंड दिस आर द इवेंट्स ऑफ ग्रिड व्यू कंट्रोल्स। नाउ कोई मुझे बताएगा कल मैंने आपको कौन सा इवेंट बताया यूज करने के लिए, ग्रिड व्यू इवेंट्स। In yesterday's lecture I told you okay, how to add events and why we have added events। मैम बताओ। मैम हाँ बोलो। मैम जितने कंट्रोल से मैम एक दो कंट्रोल आप प्रैक्टिकल में यूज करके बता दीजिए। यस राजा, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ। यस मैम, मैम ग्रिड व्यू कंट्रोल है ना मैम, तो एक या दो कंट्रोल आप बता दीजिए कैसे यूज करना है। कौन सा कंट्रोल, कंट्रोल के प्रॉपर्टीज, ये मैं जो बता रही हूँ दैट इज ग्रिड व्यू, ये ग्रिड व्यू कंट्रोल के लिए मैं बता रही हूँ, जो ये प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज आर फॉर द ग्रिड व्यू कंट्रोल्स। ओके, जो सारा प्रॉपर्टीज है वो ग्रिड व्यू कंट्रोल्स के लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैं डॉटनेट ओपन कर रही हूँ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, व्हेन आई हैव ओपन द डॉटनेट, ठीक है, आई एम रनिंग द प्रोग्राम, इट विल टेक टाइम, तो बहुत टाइम ले रहा है, तो अगर तू जूम में ना वो पता नहीं, वो जूम फिर उसकी जगह जूम स्टॉप हो रहा है। ओके, जूम स्टॉप हो रहा है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कल कोडिंग एक्सप्लेन किया, रन करके नहीं दिखा रही थी कल, फिर जब वो रन करने के लिए डॉटनेट ओपन करने के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओके, इसलिए मैं बोलूँ यू विल ट्राई। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताओ। ओके सागर, ओके मैम। हाँ, क्योंकि ना डॉटनेट ओपन होने में उसको काफी टाइम लग रहा है, एंड व्हेन आई
आई हैव ओपन .NET विद जूम के साथ, जूम में मैं वो विंडो शेयर करूँ ना तो जूम स्टॉप हो जा रहा है वर्किंग। ठीक है, ये हम लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स हमने ये प्रॉब्लम्स मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेक्चर्स हमारा ऐसे ही वेस्ट जा रहा था। ठीक है, तो ये ट्राई करो। आई एम यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप्स दिया हुआ है, तो यू ट्राई दिस स्टेप्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग फिर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, फिर आपसे करवाएंगे। ठीक है शाहजाद, तो यू कैन ट्राई देन टेल मी। ओके, क्योंकि लास्ट कल हम लोगों ने देखा तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं .NET जूम के साथ ओपन कर रही हूँ ना, जूम में वो शेयर करी हूँ .NET, तो वो जूम स्टॉप हो जा रहा है, वर्किंग नहीं हो रहा है, या तो फिर हैंग हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मैंने आप स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया हुआ है कि हाउ टू बाइंड दी डेटा। ठीक है, ये तो ये जो स्क्रीन, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, ये स्टेप्स आर सेम फॉर ऑल दी कंट्रोल्स। ये जो दिखाया है वो लिस्ट बॉक्स के लिए है। ठीक है, आप उसको इसके लिए भी यूज कर सकते हो, ग्रिड व्यू के लिए यू कैन फॉलो सेम स्टेप्स। ओके, एडिट में जाके चूज डेटा सोर्स। ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स के लिए आप ग्रिड व्यू को भी ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड दिस आइटम्स, एडिट आइटम्स एंड चूज डेटा सोर्स, तो यू विल चूज दिस ऑप्शन, चूज डेटा सोर्स एंड फॉलो दिस स्टेप्स। ओके शाहजहां, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। क्लियर? फिर भी मैम विदाउट प्रैक्टिकल क्या नहीं समझ में आएगा? क्या हुआ, क्या हुआ? मैम विदाउट प्रैक्टिकल क्या समझ में नहीं आएगा मैम? वी हैव डन प्रैक्टिकल्स ना ऑलरेडी, हम लोग ग्रिड व्यू के लिए प्रैक्टिकल्स किया हुआ। ओके ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट लेक्चर मंडे अगेन आई विल ट्राई। ठीक है, मंडे अगेन मैं आपको बताती हूँ। ओके, आज थियरी देख लो, मंडे हम लोग ट्राई करते हैं। ओके चलो, मंडे वी हैव द प्रैक्टिकल्स ना, वैसे भी प्रैक्टिकल सेशन हमारा मंडे है, वी हैव द 3 लेक्चर्स ऑन मंडे, तो मंडे वी विल डू दिस प्रैक्टिकल्स। ओके, आज थियरी देख लो, मंडे हम लोग देखते हैं स्टेप्स, हम लोग मंडे फॉलो करते हैं उसको। यस, ग्रिड व्यू वाला यू हैव ट्राई ना, जो ग्रिड व्यू का बेसिक वो ट्राई किया आपने, वो हो रहा है ना, डेटा डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस में से ग्रिड व्यू में। शाहजाद, कनेक्टिविटी किया, दैट कनेक्टिविटी भी आई हैव शोन यू यूजिंग द प्रैक्टिकल्स, वो मैंने प्रैक्टिकल से दिखाया था आपको, वो ट्राई किया। यस शाहजाद, यस और नो? मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। सिंपली डेटाबेस में से डेटा रिटर्न करवाना ग्रिड व्यू में, वो सबका हो रहा है। दैट ऑल ऑफ इट ट्राई, यस और नो? आप लोगों ने ट्राई किया, पहले मुझे वो बताओ, यस और नो? यूजिंग डेटा सेट एंड यूजिंग डेटा रीडर, ट्राई किया? आई एम आस्किंग टू यू स्टूडेंट्स। नो मैम। और किसने ट्राई किया? ओके शोएब, ओके, तो प्लीज ट्राई करो। ओके ट्राई, इफ यू विल नॉट ट्राई ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सारी थिंग्स क्या है, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, यू विल नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। प्लीज, मैंने आपको पहले ही बोला, यू हैव टू ट्राई, पैरेलली आपको करना है। ओके, आफ्टर द लेक्चर्स या तो इवनिंग में यू हैव टू परफॉर्म, बाकी ऐसे तो सब ऊपर से ही जाएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थियरी, वी ऑल आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब मैं आपको ये सब चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको समझ में कब आएगा, जब मैंने आपको ये करवाया था। ठीक है, एक्सप्लेन करवाया था, ये क्लासेस एक्सप्लेन किया उसको, प्रोग्राम्स मैंने सिंपली 4 स्टेप्स में प्रोग्राम, सी ओनली दिस 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस मैंने लिखा है। यूजिंग दिस 7 लाइंस यू कैन डिस्प्ले योर डेटा इनटू द ग्रिड व्यू। ये हमने काफी टाइम, बहुत बार किया है। ठीक है, दिस इज जो है ये डेटा रीडर से करवाया, इतना ही डिफरेंस है, एंड ये जो हमने डेटा रिटर्न करवाया दिस इज यूजिंग डेटा सेट। ठीक है, उसमें भी ये स्टेप्स तो कॉमन ही था, वी हैव रिटर्न ओनली दिस 2 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स, बाकी सेम ही था। तो इससे क्या हो रहा है, डेटा डिस्प्ले हो रहा है इन दी ग्रिड व्यू में, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ना, यू हैव टू डू प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स, जिसके पास सिस्टम है वो तो प्रैक्टिस करो ही करो। ओके, एंड सिंपली डेटा एग्जीक्यूट करवाया इसमें, एंड इसमें डेटा क्या करवाया, इंसर्ट करवाया। ओके, मतलब जो भी डेटा, वी कैन इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस यूजिंग द वेब पेज। देखो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया था, डेटा भी इंसर्ट हमारा हो रहा है, डेटा डिस्प्ले भी हमारा हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने प्रैक्टिकल से किया है। ओके, शायद आपका ये हो गया बेटा, हैव यू कंप्लीटेड दिस?
शाहजाद आपने रन किया? यस शाहजाद, हैव यू डन दिस वन? हैव यू डन? ओके प्लीज इसको करो। ओके इतना बेसिक है, इतना अगर समझ में आ गया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन ना, कि व्हाट इज कनेक्टिविटी, ये व्हाट इज एसक्यूएल कमांड, व्हाट इज डेटा सेट, व्हाट इज डेटा एडेप्टर, कभी लिखना है, कैसे उसको लिखना है। देन यू कैन, एक बार आपको डिस्प्ले करवाना आ गया तो यू कैन इजीली इंसर्ट, यू कैन इजीली अपडेट, यू कैन इजीली डिलीट। ओके ओनली क्वेरी विल बी चेंज, ये क्वेरी जो है क्वेरी चेंज होगा, बाकी स्टेप्स तो यही रहेगा, स्टेप्स विल बी सेम। ओके ओनली क्वेरी विल बी डिफरेंट। ओके अपडेट इंसर्ट डिलीट करवाने के लिए। तो दिस इज वन थिंग कि आपको ये ट्राई करना है पहले घर पे। आफ्टर दिस डिस्प्ले करवाने के बाद व्हाट यू विल ट्राई, यू विल ट्राई दिस वन, इंसर्ट करवाना। ठीक है, सी दिस आर द सेम। ओके एग्जीक्यूट कमांड एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, इंसर्ट कमांड, ओनली क्या चेंज हो रहा है, दिस वन इज चेंज। ओके बाकी स्टेप सेम है, सेम वैसे ही डिलीट के लिए। ओके ऑल दिस थिंग्स आर सेम। अपडेट करवाना है तो व्हाट यू विल राइट, अपडेट क्वेरी यू विल राइट, बाकी सब सेम है। ओके डिलीट करवाना है तो यू विल राइट दी डिलीट क्वेरी। ओके सी डिलीट वेयर id is equal to only delete query change, बाकी कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एडेप्टर करना, डेटा सेट फिल करना यूजिंग द एडेप्टर का फिल मेथड से ओनली, सॉरी ऑल दे आर सेम, ओनली दिस टू लाइंस जो कमांड क्वेरी है डिलीट कमांड वही होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ओके तो when you will do practice, when you will read it, okay तो ही you will get idea कि what are done, otherwise नहीं समझ में आएगा। ठीक है ऊपर जो दिखाया वो ग्रेड के लिए था। ठीक है नाउ अभी यहाँ पे मैंने जो आज एक्सप्लेन किया व्हाट इज दिस, वो क्या था, जो बाकी जो कंट्रोल्स है, चेक बॉक्स लिस्ट, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, इन दिस कंट्रोल आल्सो यू कैन डिस्प्ले द डेटा, आप इसमें भी डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो, यू कैन डिस्प्ले द डेटा इन दिस कंट्रोल आल्सो। ओके जस्ट आपको एक ही प्रॉपर क्या सेट करना है, एडिट में जाके डेटा को सिलेक्ट करना है, ये आई विल डू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है मैं आपको नेक्स्ट मंडे प्रैक्टिकल में आई विल शो यू, बट बिफोर दैट यू हैव टू रन दिस वन, आपको ये रन करना है ऊपर जो दिखाया है, उतना नहीं हो सके तो ओनली जस्ट डेटाबेस में से डेटा डिस्प्ले करवाओ ग्रिड व्यू में एंड इंसर्ट करवाओ, ये टू थिंग्स आप करके आना मंडे। ठीक है तो ही समझ में आएगा। ओके एंड दिस आर्ट जो है वो मैं आपको कोडिंग नहीं करवाऊंगी, डायरेक्टली उससे प्रॉपर्टी सेट करके आई विल शो यू डेटा कैसे डिस्प्ले करवाना है। क्लियर? तो प्लीज कम विद दिस रिवीजन। ओके बिकॉज दिस आर दी मेन। ओके क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए what is SQL command, what is SQL connection, how to write, how to create the objects. Okay ये आएगा समझ में तो ही डेटाबेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फिर ऊपर से ही जाएगा, then there is no means of this subject. Okay what is the use of this subject, ये main is the connectivity, controls वगैरह तो easy है, okay that we have learned, but what is the main thing, okay database connectivity, that is the main thing. Okay so please follow these steps. Okay I will provide these notes after the lecture, अब भी अब लेक्चर के बाद मैं इसको आपको उसमें प्रोवाइड करी हूँ गूगल क्लासरूम में, तो प्लीज गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस करके आना। क्लियर? मंडे करके आओगे सब लोग। यू रिक्वायर ओनली 2 आवर्स, 2 आवर्स ही आपको लगेगा ये सब करने के लिए, एक्चुअली हाफ एन आवर का ही काम है, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कोडिंग टाइप करने में वगैरह। एंड इसका जो रिकॉर्डिंग्स जो है, ये जो मैंने जब करवाया था उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइडेड है यूट्यूब पे। ठीक है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो, गूगल क्लास में भी दिया हुआ है मैंने वो वाला रिकॉर्डिंग्स। अभी ये 2-4 लेक्चर्स के बाकी है, बाकी उसके पहले ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर प्रोवाइडेड टू, so you can see in that recorded lectures. Clear? Yes or no? Yes ma'am. Okay ठीक है तो सब जिसके पास सिस्टम है ऑल विल डू प्रैक्टिस टुडे। ओके विदाउट प्रैक्टिस लेक्चर्स में नहीं आना, नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी आज सब ऊपर से गया ना वैसे ही गया, थैंक्स टू शाहजाद कि शाहजाद ने बोला यस मैम, तो मुझे आया कि नहीं सबको ऊपर से जा रहा है। ओके तो नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या सुन रहे थे आप लोग? ऐसे ही लेक्चर अटेंड करने के लिए, अटेंडेंस के लिए आ रहे थे। हाँ यू हैव टू टेल ना मैम कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अगेन रिपीट करवाओ, आई विल रिपीट। ओके
ओके मैंने आपको कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं खुद से कर लो. ओके एवरी टाइम आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, रिपीट ऑल दिस थिंग्स. ओके तो प्लीज इतना परफॉर्म करके आओ. यस अरबाज काफी दिनों के बाद लेक्चर्स में, तो अरबाज को पता नहीं समझ में आया है कि नहीं. ओके उमेरा, तरन्नुम, रोहित, ऑल द स्टूडेंट्स आर रेगुलर. कीर्ति, कृतिका, ठीक है. प्लीज प्रैक्टिस करो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस वन. ठीक है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. अदरवाइज ये जो सब करवा रही हूँ ऊपर से ही जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा. तो प्लीज कम विद द प्रैक्टिस. ओके एंड ये जो प्रॉपर्टीज जो है ग्रिड व्यू का प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको दिखाया, दैट आई विल शो यू एंड दैट आई विल एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस जो है इसका आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है मतलब मंडे पूरा प्रैक्टिकल सेशन ही हम लोग करेंगे. ठीक है सी यहाँ पे ओनली डेटाबेस ही चूज करना है और कुछ नहीं करना है. ओके प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, क्योंकि उसमें हम लोग डेटा बाइंड करवा रहे हैं. डेटा बाइंड मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा बाइंडिंग? डिस्प्ले द डेटा इनटू द कंट्रोल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग? बाइंडिंग मतलब क्या, display the database records into the controls. What is controls? List box, बटन वगैरह जो भी ऑल आर दी कंट्रोल्स, रिव्यू ऑल आर दी कंट्रोल्स. वो कंट्रोल्स में डेटा डिस्प्ले करवाना मतलब क्या है, डेटा बाइंडिंग. ओके एक्चुअली आज मुझे आपको ये डेटा बाइंडिंग करवाना था, बट ठीक है कोई बात नहीं. ठीक है मंडे वी विल कंप्लीट दिस. ओके तो डेटा बाइंडिंग मतलब टू डिस्प्ले दी डेटा. वी हैव सेट प्रॉपर्टीज. आपको याद है ग्रिडव्यू 1 डॉट डेटा, सो उसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेट किए थे ग्रिडव्यू 1 डॉट डेटा बाइंड. तो डेटा बाइंड इज अ प्रॉपर्टी. क्या है प्रॉपर्टी? why? Because it is used to display the data into the records, sorry into the controls. okay controls पे डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा बाइंड. डेटा बाइंड का मीनिंग ही वही है, डेटा डिस्प्ले करवाना. ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग होता है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन. व्हाट इज सिंगल लाइन, व्हाट इज मल्टी लाइन, वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट प्लीज कम विद द प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिकल नहीं करके आओगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी आगे. This is the last and strict warning. Please come with the practice. Okay, simply database में से डेटा डिस्प्ले करवाना है, बस एक ही करके आओ. इंसर्ट का भी जाने दो, एक ही करके आओगे. डेटाबेस क्रिएट करोगे, इंसर्ट करो डेटा उसमें टेबल्स में एंड वो डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाओ. बस इतना एक करके आना. क्लियर? आई विल आस्क टू यू कि आपने कैसे किया स्टेप्स. ओके पूरा का पूरा कोडिंग नहीं, ओनली आई विल आस्क दी स्टेप्स. ओके चलो तो हम लोग अगेन हम लोग देख लेंगे डेटाबेस, तो आपका सबका प्रैक्टिस हो जाएगा. ऐसे भी हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है तो वी कैन प्रैक्टिस. क्लियर? तो वो करने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके तो प्लीज 12 कितना स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स. आई वांट ऑल